welcome to thorough newspaper analysis for 17th of March, which is presented to you by Law Seekho. Now let's proceed with today's agenda. पहले तो हम international and national news की discussion करेंगे which are relevant for your exam. This is going to be followed by 2 legal news and last में एक editorial है titled as Marriage Less Narrow. It again is in with this is with respect to the petition जो कि legal recognition चाह रही है of marriage by a homosexual couple. Now let's proceed with the first segment, which is personalities. Pehli personality which is made to the headlines and which is relevant is Deepak Mohanty. He's been appointed as the chairperson of Pension Fund Regulatory and Development Authority, and pehle he was executive director at the Reserve Bank of India. एंड अगर हम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है जो पेंशन रिलेटेड सारे इश्यूज की रेगुलेशन करती हैं. एंड सेकेंडली दिस फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट अपडेट इज विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास. वो अभी 25th एंड करंट आरबीआई गवर्नर है. उनको हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स ऑफ 2023. Now let's proceed with the next news headline. Venus, there's an active volcano on Venus, and this essentially shows कि geologically speaking Venus is a living planet. ये images जो है they've come forth from NASA's Magellan spacecraft, the Magellan mission जो NASA का था. These pictures were taken some 30 years ago, and Magellan mission जो है ये एक comprehensive mission था जिसने NASA की पूरी surrounding and surfaces की images ली थी, and this was a comprehensive mission for Venus, and Venus is the second closest planet from Sun. Now let's proceed with the next update. RBI recently has allowed banks from UK and 17 other countries to open Vostro accounts for rupee trade, and the list of these 17 countries is provided here for your kind consideration. Now let's proceed with the next news update. This is from the defense segment. Defense startup Hyperstealth Technologies, it has bagged first order under IDEX. Indian Army world की biggest customer है when it comes to integrated mobile camouflage system solutions, and Hyperstealth Technologies Private Limited, it becomes the first stealth management solution to win an order under the Innovation for Defense Excellence program. Now let's proceed with the next update. Recently on 16th of March, National Vaccination Day celebrate किया गया था, जिसको Immunization Day भी बोलते हैं या फिर पोलियो रविवार. एंड एक एनुअल इवेंट होता है जो कि सेलिब्रेट करता है अवेयरनेस, एंड इसकी वाई डू वी सेलिब्रेट इट, इसका पर्पज़ है ताकि हम इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाएं. एंड पोलियो से आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर. यू वुड फाइंड एंड अप्रिशिएट द फैक्ट कि इंडिया की जो जर्नी रही है टू डिफीट पोलियो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड मे बी लुक इट अप हाउ वी फॉट पोलियो यूजिंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम itself. Now let's proceed with the next segment. This is also indeed a very interesting news. Journalist Dhanya Rajendran, she is to receive चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर 2022. एंड अगर मैं सबसे पहले इस अवार्ड की बात करूं, चमेली देवी जैन अवार्ड, दिस इज़ नेम्ड आफ्टर अ फ्रीडम फाइटर चमेली देवी जैन, एंड शी वाज द फर्स्ट जैन वुमन जो कि जेल गए थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. एंड ये अवार्ड है, दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1982 बाय द मीडिया फाउंडेशन, एंड इसका पर्पज़ है टू ऑनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडियन विमेन जर्नलिस्ट. एज फार एज दिस अवार्डी इज कंसर्न्ड, तो शी वॉन अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन्स कैटेगरी, एंड शी इज co-founder and editor-in-chief of the News Minute. Now let's proceed with the next update. Atal Innovation Mission, it has launched Atal Tinkering Laboratories. Atal Innovation Mission, it is establishing Atal Tinkering Laboratories in school across India, और इसका पर्पस essentially वही है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस फॉस्टर करी जाए, एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन इनकलकेटिंग स्किल्स जैसे कि डिज़ाइन थिंकिंग माइंडसेट और डेवलप हो, जिससे कंप्यूटेशनल थिंकिंग, अडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटेशन एंड ऑल ऑफ दीज स्किल्स. एंड एज ऑफ डेट अगर हम बात करें तो एम विच इज़ अटल इनोवेशन मिशन, इसने फंड करी है 10,000 स्कूल्स को फॉर दिस पर्पस. एंड अटल इनोवेशन मिशन एसेंशली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर
inculcating or celebrating the idea of innovation in kids. Now let's proceed further. This now we have come to the international news segment. U.S. Senate confirms Eric Garcetti as U.S. ambassador to India. He is first permanent ambassador to India after Joe Biden जब से president बने उनकी term शुरू हुई है तब से. And this is an important update in the geopolitical sector because Japan and South Korea, they've agreed on re-establishing their ties in के relation, and this happened at Tokyo Summit. इनके जो relationship थे वो they deteriorated because उनके historical जो differences थे about freedom struggle, and क्योंकि now they've decided to reunite their ties, तो this is an important update. Why? Because इससे जो security concerns arise हो रहे थे regarding China and North Korea वो address होंगे to certain extent. This also reminds me of a very recent update which is very similar, जहाँ पे two countries ने अपनी ties जो थी वो re-establish करी है with the help of China after a 4-day dialogue in Beijing, and ये हमने अपने TNA भी cover किया था. I would request all of you to please put it in the comment section कि कौन सी वो दो countries हैं जिन्होंने अपनी ties फिर से regain करी है. Now let's proceed with the next international news. ISRO and Bhutan government, they have inaugurated ground station of Indo-Bhutan satellite. ये satellite है, this is named as Bhutan Sat, and इसकी inauguration हुई थी at Thimphu. And the ground station, it will give Bhutan real-time data pertaining to its territory. Another update from this very segment is that recently Brazil के एक island पे एक terrifying plastic rocks की formation की discovery हुई है. तो essentially क्या हुआ था कि melted plastic जो थी it got into the rocks, and वो एक strange सी rock formation हो गई है जो कि एक concern भी है because एक natural geological process जो कि rock formation की होती है उसमें there is an element of man-made thing which is plastic. So this is what this update is about. कि melted plastic has become intertwined or interwoven with rocks on an island of Brazil, and this island is located 1,140 kilometers from the southeastern state of Espirito Santo, and this particular update, it has made scientists to see that this is an evidence of humans' growing influence over the Earth's geological cycles. Now let's proceed with the legal update segment. This update comes from the Honorable Apex Court. Supreme Court ने ये हेल्ड किया है कि अगर रेजोल्यूशन प्लान किसी कॉर्पोरेट डेटर का अप्रूव हो जाता है अंडर द IB कोड विच इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो फॉर्मर डायरेक्टर है उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी. सी 138 NI एक्ट जो है इट प्रोवाइड्स फॉर चेक बाउंस कंप्लेंट्स. तो अगर चेक आपका डिसऑनर हो गया है, अ चेक विच इज इशूड owing to a legal liability, it has gotten dishonored. So the mechanism, this is what it's about. You can file a complaint for the same. So this ruling of the Honorable Apex Court is saying that the approval of this resolution plan, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टर की जो liability थी 138 NI Act में वो extinguish हो जाएगी. The name of this particular case is Ajay Kumar Radheshyam Goenka versus Tourism Finance Corporation of India Limited. Now let's proceed with the next update, which is with respect to Section 90 of the Indian Evidence Act. सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियली ये बोला है कि जो प्रिजम्पशन सेक्शन 90 कैरी करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का रिगार्डिंग जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो कि 30 ईयर ओल्ड है, एंड वो अगर कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि अगर वो ऐसा प्रूव कर दे कि दिस वाज नेचुरली जहाँ पे उस वो डॉक्यूमेंट है इट हैज़ बीन प्रोड्यूस फ्रॉम अ पर्सन जिसके पास ऑर्डिनरीली उसकी कस्टडी होनी चाहिए थी, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर फुलफिल हो जाती है तो प्रिजम्पशन होती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है. एंड इसका पर्पस ये है बिकॉज इतने साल हो गए हैं तो देयर माइट वो लोग जिन्होंने मे बी उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को विटनेस किया है अटेस्टेशन में ओवर प्रेजेंट, तो उनकी प्रेजेंस बुलानी मुश्किल हो जाती है कोर्ट के सामने ड्यू टू द नंबर ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज़ देयर. तो अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्शन 90 के फुलफिल हो जाते हैं कि इट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ अ पर्सन जो कि प्रॉपर कंसिडर करी जा रही है एंड इट इज़ 30 ईयर ओल्ड, तो फिर हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज़ जेन्युइन. तो कोर्ट ने बोला है कि हाउएवर ये जो प्रिजम्पशन है वो विल पर एप्लीकेबल नहीं है. The name of this particular case is Ashutosh Samantha versus Ranjan Bala Desai and others.
Now let's come to the editorial for today, which is an Indian Express editorial titled as Marriage Less Narrow. This is in fact an interesting article. This article starts with painting a very practical scenario, and it says, let's look into three situations. Your partner is in a critical condition. He or she is admitted in a hospital. The hospital is asking for the next kin of your partner. क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, देयर आर सर्टन डिसीजंस टू बी मेड, तो इसके लिए कोई भी जो पेशेंट है उसकी फैमिली मेम्बर हैज़ टू बी देयर, एंड यू आर अ पार्टनर ऑफ द पर्सन बट यू आर नॉट कंसिडर्ड अ फैमिली मेम्बर. क्यों? बिकॉज यू आर नॉट मैरिड. नाउ सेकेंड सिनेरियो इज यू वॉन्ट टू लिव टुगेदर विद योर पार्टनर, बट आपको हाउसिंग सोसाइटी में यू आर नॉट बीन एबल टू गेट अ हाउस ऑन रेंट. Third situation, suppose your partner is under a certain legal liability, चाहे criminal liability, let's say, and you are asked to depose against your partner. Now you don't want to do that, but you'll be forced to do that. Now had you been married, तो क्या होता कि यहाँ पे principle of privileged communication would have applied. Section 122 of Indian Evidence Act would have come into picture, and you would have gotten and आपको force नहीं किया जा सकता था कि you depose against your partner, because 122 क्या कहता है essentially कि any communication which a person makes, जो कोई पर्सन अपने स्पाउस को कम्युनिकेट करता है जब उनकी मैरिज की ड्यूरेशन चल रही होती है, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर मैरिज, तो वो जो कम्युनिकेशन है इट इज़ प्रिविलेज्ड, एंड कोई भी आपको कोर्ट में फोर्स भी नहीं कर सकता, ना ही आपको परमिट कर सकता कि आप उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करो. उसके दो एक्सेप्शंस हैं कि पहला तो जब आप हस्बैंड एंड वाइफ उनके खुद ही के एक दूसरे के अगेंस्ट केसेस फाइल करे गए दे बिफोर द कोर्ट अगेंस्ट ईच अदर, एंड सेकेंडली जब कंसेंट दे दिया गया है डिस्क्लोजिंग और कम्युनिकेटिंग स्पाउस ने. Now the editorial says कि all of these rights ये आपको available नहीं होंगे even though you are living together and you've considered the other person as your partner, but because you're not married, so these rights are not going to be applicable to you. Now the authors say that suppose a homosexual couple is there. Now उनकी तो even if they want to get married तो भी उनकी marriage is not going to be legally recognized because अब तक वो legally recognized है ही नहीं. So now this editorial brings forth the entire petition into picture, and it says कि 13th मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रेफर किया, एंड सेंटर का रिस्पांस जो था अपने एफिडेविट में उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला सेंटर का क्या आर्ग्यूमेंट था कि मैरिज इज जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए. देयर हैज़ टू बी बायोलॉजिकल मैन, बायोलॉजिकल वुमन एंड अ चाइल्ड. बट अगर हम सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दे देंगे तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा. सेकेंडली उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको अप्रूवल दे दें तो हमारी जो पर्सनल लॉज हैं उनमें हैवॉक क्रिएट हो जाएंगे, उनमें सब डिस्टेबलाइज हो जाएगा. एंड थर्डली वो कहते हैं कि मैरिज जो है इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी, तो पार्लियामेंट एंड जो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है उन्हीं पे इसका डिसीजन छोड़ देना चाहिए. द कोर्ट शुड नॉट इंटरवीन. बट ऑथर्स का काउंटर ये है सबसे पहले तो एड्रेसिंग द इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. सेकेंडली कि पर्सनल लॉज में अगर कोई चेंजेस भी आएंगे तो बहुत ही मिनिमल चेंजेस आएंगे, ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे. एंड थर्डली दैट मैरिज उनका ये कहना है कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमारा मैरिज का, या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं जिसको हम पॉपुलर मोरालिटी कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे प्रिवेल नहीं करेगी. अब ये क्या है तीनों पॉइंटर्स, अब हम इसको डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले लेट्स टेक द पॉइंट ऑफ एज पर द ऑथर्स दिस पर्टिकुलर इशू नॉट बीइंग अ मैटर ऑफ पॉलिसी. ऑथर्स अपनी आर्ग्यूमेंट ऐसे स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से इवन इफ इट इज़ मैटर ऑफ पॉलिसी, तो कोई भी अगर सोशल पॉलिसी का मैटर होता है इट इज़ लाइबल टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, एंड कोर्ट को आना ही पड़ता है अगर कोई फंडामेंटल राइट्स या कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं. अगर हम इस पेटिशन की बात करें तो पेटिशनर्स क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि उनके प्राइमरीली ब्रॉडली 2 राइट्स वायलेट हो रहे हैं जो कि इस एडिटोरियल में हाईलाइटेड है. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, and secondly right to privacy. Let's take up the first right, which is against discrimination and right of equality and equal protection of law. First is equality article 14, non discrimination article 15. तो उनका कहना है कि जो petitioners है उनका ये कहना है कि they have been discriminated against and equality is not, their right of equality is violated on the ground of sex.
नाउ इसको इंटरप्रिटेशन करते हुए ऑथर ने दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हाईलाइट करी है. फर्स्ट इज कि द टर्म सेक्स इट इंक्लूड्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑल्सो. नाउ दीज homosexual couples, they have been discriminated against on the basis of their sexual orientation, right? And secondly that so this particular ये जो definition है जिसमें ये कहा है कि the term sex it includes sexual orientation, this was given by the honorable Supreme Court in the case of Navtej Johar. एंड ये इसको फर्दर एलैबोरेट करते हुए कहते हैं कि सिंस ए हेट्रोसेक्सुअल कपल हैज़ ए राइट टू मैरी, so therefore homosexual couple should also have a right to marry, but they are not given this right based on the ground of their sexual orientation, which is a part of the term sex, which is used under article 15, which provides or safeguards against non-discrimination. तो यहाँ पे इनका एक राइट वायलेट होता है, ये पेटिशनर्स का कहना है. सेकेंडली, राइट टू प्रिवेसी को फर्दर करते हुए उनका ये कहना है कि राइट टू प्रिवेसी पोस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन पुत्तस्वामी वो एक पार्ट है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो दैट इज ऑल्सो बीइंग वायलेटेड, एंड देन द ऑथर्स से दैट दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ मेयर पॉलिसी. नाउ लेट्स कम टू कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं पर्सनल लॉ स्पेस में. तो द ऑथर्स वेरी राइटली पॉइंट आउट कि जैसे जो पर्सनल लॉज हैं उनको हम ब्रॉडली ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देर आर कॉडिफाइड लॉज एंड देर आर लॉज विच आर नॉट कॉडिफाइड बट जिनमें रिलीजियस कॉनोटेशंस होते हैं. बट देन देर इज अ सेक्युलर लॉ जो कि है स्पेशल मैरिजेस एक्ट. एंड द ऑथर सेज कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मैटर में ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं सर्टेन प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट को जिससे कि आराम से होमोसेक्सुअल मैरिज फिट इन हो सकती है. अब वो कैसे कैसे, सबसे पहले तो देखिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इट टॉक्स अबाउट मैरिज बिटवीन एनी पर्सन. नाउ एनी पर्सन की इंटरप्रिटेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि एनी टू पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर ओरिएंटेशन. एंड सेकेंडली स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो बहुत बारी जगह रेफर करते हैं द टर्म हस्बैंड एंड वाइफ. द ऑथर सेज दैट इन अ होमोसेक्सुअल मैरिज ऑल्सो देर आर गोइंग टू बी हस्बैंड्स, देर आर गोइंग टू बी वाइफ्स. बस डिफरेंस यही है कि देर आर गोइंग टू बी टू हस्बैंड्स और टू वाइफ्स इंस्टेड ऑफ हैविंग वन हस्बैंड एंड वन वाइफ. थर्डली ये एडिटोरियल ये बात करता है कि बस हमें जो पॉइंट जो हमें डिफरेंसेस लाने हैं स्पेशल मैरिजेस एक्ट में वो सिर्फ कुछ ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे हैं, जैसे कि जो टर्म्स है हस्बैंड एंड वाइफ यूज करे गए हैं उनको क्वालिफाई करा है डेफिनेटिव आर्टिकल में द हस्बैंड एंड द हस्बैंड वाइफ लिखा है. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन पुट अ हस्बैंड अ वाइफ, सो दैट शुड सफाइज आवर पर्पस. एंड इससे क्या होगा कि ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस भी नहीं आएंगे बट थोड़े से चेंजेस आएंगे एंड दिस मैटर विल बी रिजॉल्व. And then or it would be rightly addressed rather. And then the editorial further talks about इसमें एक एग्जाम्पल दिया है यूएस का. तो उन्होंने कहा है कि जैसे यूएस में पोस्ट द जजमेंट विच आई बिलीव केम इन 2015 जब वहाँ पे होमोसेक्सुअल मैरिज को एक्नॉलेज कर लिया गया था, तो उस जजमेंट के बाद भी देर आर 31 स्टेट्स आउट ऑफ 50 यूएस स्टेट्स जहाँ अमेरिकन स्टेट्स जहाँ पे कि ये जहाँ पे ये अभी भी लॉ है जहाँ पे अभी भी यही मेंशन्ड है कि मैरिज इज अ यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन और अ हस्बैंड एंड अ वाइफ. बट फिर भी उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है बिकॉज पोस्ट द जजमेंट अब ये सारी जगह पे ही होमोसेक्सुअल मैरिजेस valid and there is no as such implication, practical implication of uses of these words. So similarly the author is saying कि even if no amendments per se are made under the special marriage act तो वो इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है अगर कोर्ट ये कह दे कि दिस इज ए लीगल वैलिड मैरिज एंड कोर्ट देन फर्दर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस wherever needed under the special marriage act accordingly to give effect to such legal recognition जो कि कोर्ट ने ब्रॉट फोर्थ करी है. एंड नाउ लेट्स कम टू द थर्ड विंग जो सेंटर की भी आर्ग्यूमेंट थी जो कि है कि ट्रेडिशनल जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें एक बायोलॉजिकल मैन वुमन एंड चाइल्ड होना चाहिए एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो उसको एड्रेस करते हुए ऑथर्स ने ये कहा है कि टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन सो मेनी मैटर्स, चाहे वो मुंबई बार डांसर्स मैटर हो एंड अदरवाइज ऑल्सो, कि कभी भी जो पॉपुलर मोरालिटी है वो नहीं प्रिवेल करेगी ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. पॉपुलर मोरालिटी इज व्हाट इज द नोशन ऑफ मोरालिटी जो विद इन द मासेस सर्कुलेट हो रही है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन मॉरल्स जो है वो नहीं प्रिवेल करेंगे, जबकि हमारे फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है and validated by the constitution वो prevail करेंगे when it comes to the matters of rights. And this is how the editorial ends, that for long gay and lesbian couples they have been denied their rights by appeals to prevailing popular morality and now they deserve better.
So that's all we have for this editorial, and with this we come to the end of our TNA. अगर आपको TNA की slides and PDFs free material का access चाहिए, I would request all of you to join our Telegram channel. उसके लिए link आपको YouTube video के description में मिल जाएगा, and otherwise you can scan this barcode. इसके अलावा आपको contact information अगर चाहिए, you want to contact LawSeco for any purpose, these are the point of contact. And पिछले दिन का जो TNA है उसका quiz आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. And please do comment about which two countries have regained their ties recently. And thank you so much for being with us.